morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our new chapter number 13. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ठीक है. Why? So first off we have to see here. When we do the exercise, they realize that the health and disease in human communities are very complex issue. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या रियलाइज करते हैं कि हेल्थ एंड डिसीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू विद द मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेस. उसके क्या बहुत सारे इंटरनेट कनेक्टिंग कॉजेस हैं. वी आल्सो रियलाइज दैट द आइडियाज ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिसीज मीन आर देमसेल्फ वेरी complicated. When we ask what cause disease and how we prevent them, तो डिसीज के कॉजेस क्या हैं, उससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं. वी हैव टू बिगिन बाय द आस्किंग व्हाट दिस नोशन मीन्स. वी हैव सीन द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो सेल है ऑर्गन्स का बेसिक यूनिट है. सेल आर मेड ऑफ a variety of chemical substance, protein, carbohydrates, fats और lipids. तो सेल किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट्स से और लिपिड से. सेल इज ए डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज द हैपनिंग इनसाइड देम. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड द रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल. न्यू सेल आर बीइंग मेड इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज में हमारे न्यू सेल बनते हैं. देयर आर द वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन. द हार्ट इज बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीथिंग and the kidney is filtering urine, the brain is thinking. It is the work of the different organs. brain का वर्क क्या है? thinking करना. kidney का क्या है? यूरिन को फिल्टर करना. lungs का क्या है? breathing करना. heart का क्या है? beating करना. heart beat करता है, lungs breathe करता है, kidney filter करती है, brain think करता है. all these activities are interconnected. for the example, if the kidney are नॉट फिल्टरिंग यूरिन, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. इफ़ किडनी क्या कर रही है? यूरिन को फिल्टर नहीं कर रही है. क्या नहीं कर रही है? फिल्टर नहीं कर रही है. देन इट इज़ ए पॉइजनस सब्सटेंस. इट इज़ ए पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेटेड अंडर सच द कंडीशन. द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू द थिंक प्रॉपरली. तो उसके क्या पॉइजनस हो रहा है बॉडी में, तो ब्रेन भी क्या है? प्रॉपरली थिंक नहीं कर रहा है. द ब्रेन विल नॉट टू एबल टू द थिंक प्रॉपरली. For all these interconnected activities, energy and raw materials are needed. Food is necessary for cell tissue functions. Anything that prevents the proper functioning of the cells and tissues will lead the lack of the proper activity of body. Means सब बॉडी में क्या है? इंटरकनेक्ट है. आपका एक पार्ट अच्छा रहेगा तो पूरी बॉडी अच्छी रहेगी. अगर बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, देन योर बॉडी डू नॉट प्रॉपर work. Health and its failure, we have to see here the significance of the health. Which is the significance of the health? We have heard the word health used the quite frequently. We use the ourselves as well. When we see things like my grandmother's health is not good, our teachers use it when they scold us saying this is not a health attitude. What does the word health mean? health का mean क्या है कि, ठीक है, we have to see here. If we think about it, they realize that it always implies the idea of being well. We can think of this well-being as the effective functioning for our grandmothers. Being able to go out the market and visit the neighbors is being well, and not being able to such thing is poor health. मतलब आप जैसा सोचोगे, लाइक दैट आप सोच रहे हो योर ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज नॉट गुड, इट इज हैव ए मेंटली इफेक्ट. तो आपको हमेशा कैसा पॉजिटिव थिंक करना है. नो, देयर हेल्थ इज गुड, नॉट पुअर हेल्थ. बीइंग द इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग द टीचिंग द क्लासरूम so that
we can understand the word is called the healthy attitude, while not being interested is called the opposite. Health is therefore a state of being well enough of function well physically, mentally and the socially. Now we have to see in the person and community issue both matter for health. Personal और community both matter health पे effect करते हैं. We have to see in here if health means the state of physical, mental and the social well-being, it cannot be something that. मतलब health means क्या है? Mental, physical and social both are, तीनों तरह से पर्सन कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एनर्जीफुल होना चाहिए. वी हैव टू सी इन हियर each one of us can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surrounding or their environment. हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? उसके सराउंडिंग environment. The environment includes the physical environment. For example, health is at risk in cyclone in many ways. Okay, human being lives in societies, human being society में रहते हैं. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. हमारी इंडिविजुअल हेल्थ पे हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है. We live in villages, towns or cities. In such place, even our physical environment is decided by our social environment. Okay, फिजिकल एनवायरनमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोशल एनवायरनमेंट पे. Consider what would happen if no agency is ensuring that the garbage is collected and disposed. What would happen if no one takes the responsibility for clearing the drains and ensuring the water does not collect in the streets of open spaces? देखो, जो गार्बेज है उसको क्या ओपन स्पेसेस में मत फेंको, ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर क्या मैनेजमेंट होना चाहिए. ओके, इफ देयर इज ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अवर स्ट्रीट्स, तो देखो मैंने अभी बोला उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए गार्बेज डील के लिए. और इफ देयर इज ओपन ड्रेन वाटर लाइंग द स्टेजमेंट अराउंड दिस लिव द पॉसिबिलिटीज ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस. अगर उसको आप यहाँ वहाँ फेंकोगे तो उससे क्या होगा? जो पर्सनल हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. दिस मीन्स जो आपका सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, आप किस तरह से रहते हो, उसका भी आपकी पर्सनल हेल्थ पे इफेक्ट करता है. We need food to be healthy and this food will have to earn by doing work. Okay, फूड भी कैसा चाहिए हमें? हेल्दी चाहिए. वो कैसा चाहिए? earn by doing work से. For this is opportunity to do work has to be available. We need to be happy in order to be truly health, and if the mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy. Now we have to see in here, so society equality and the harmony are therefore necessary for individual health. We can think many other such examples of the connections between the community issues and the individual health. We have to see in the figure also. We have to see in the figure. First, the 5S. What is to be done? क्या करना चाहिए? First is प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स. वाटर सोर्स को अपने क्या करो? प्रोटेक्ट करो. ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली. अपने वाटर को क्या करो? ट्रीट करो सेफली. नेक्स्ट वन इज वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एंड द टेकिंग फूड. फूड लेने से पहले अपने हाथ को वॉश करो. वॉश हैंड्स आफ्टर द डिफ्लेक्शन. आफ्टर डिफ्लेक्शन को भी क्या करो? डिफेक्शन, उसके बाद भी क्या करो?
हैंड को वॉश करो। थर्ड वन, कवर द फूड, फूड को कवर करो। कंट्रोल द फ्लाइज, जाके उस पर मक्खी नहीं बैठे। नेक्स्ट वन इज क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज, यूज करने के बाद वेजिटेबल और फ्रूट को क्या करो, क्लीन करो। अवॉइड ओपन द डिफेक्शन, उनको ओपन में डिफेक्शन में रखने से बचें। नेक्स्ट वन इज पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, वाटर को यहाँ वहाँ ना फेंके। दैट मीन्स एच मीन्स हाइजीन और एस मीन्स सैनिटाइजेशन। ओके, तो इट हैव टू मस्ट टू डू इन योर होम। आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि इस तरह से आप भी अपनी सोसाइटी, अपने घर और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। अगर आप ये सब करोगे तो आपकी सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी, आप भी हेल्दी रहोगे, इंडिविजुअल हेल्थ भी रहेगी, कम्युनिटी हेल्थ भी रहेगी। अभी कोरोना वायरस का दौर है, ठीक है, ये तो इस समय आप अपने आप को भी हेल्दी रखो, अपने फैमिली को हेल्दी रखो और अपनी सोसाइटी और शहर को हेल्दी रखो। इफ़ एनीबडी हैव एनी query regarding this topic up to here, then ask me in comment box. In the next lecture, we studied about the disease and its causes. Now today we have to get introduced for the health, how we cause ill. Okay, in the next lecture we have to discuss about the disease and its causes. Have a nice day.